بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کے لیے خدائی سلسلہ ہدایت، مولانا ابو العلا مودودی۔ خداوند عالم نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرمانروا ہے، اپنی بے پایا مملکت کے اس حصے میں جسے ہم زمین کہتے ہیں، انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دی، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات بخشے، اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری یعنی آٹونمی دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنائے۔ اس منصب پر انسان کو مقرر کرتے وقت خداوند عالم نے اچھی طرح اس کے کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی تھی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک، معبود اور حاکم میں ہوں۔ میری اس سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، اور نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت و بندگی اور پرستش کا مستحق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا ہے اور کون ناکام۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کر لو، اور جو ہدایات میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو، اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو، تو تمہیں دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہوگا، اور جب میرے پاس پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں ابدی راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر دوسرے کسی رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی ہے، تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر عالم آخرت میں جب آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گھڑے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ مسلم بن کر رہنے کی ہدایت۔ یہ فہمائش کر کے مالک کائنات نے نوع انسانی کو زمین میں جگہ دی، اور اس نوع کے اولین افراد آدم و حوا کو وہ ہدایات بھی دے دی جس کے مطابق انہیں اور ان کی اولاد کو زمین میں کام کرنا تھا۔ یہ اولین انسان جہالت اور تاریکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے زمین پر ان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا۔ وہ حقیقت سے واقف تھے، انہیں ان کا قانون حیات بتا دیا گیا تھا، ان کا طریقہ زندگی خدا کی اطاعت یعنی اسلام تھا، اور وہ اپنی اولاد کو یہی بات سکھا کر گئے کہ وہ مطیع خدا مسلم بن کر رہے۔ انحراف، ڈیویشن فرام دا پاتھ۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسان اس صحیح طریقے زندگی دین سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی کیا اور شرارت سے اس کو مسخ بھی کر ڈالا۔ انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی، خیالی اور مادی ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرا لیا۔ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت میں طرح طرح کے اوہام اور نظریوں اور فلسفوں کی آمیزش کر کے اپنی خواہشات نفس اور اپنے تعصبات کے مطابق ایسے قوانین زندگی گھڑ لیے جن سے خدا کی زمین ظلم سے بھر گئی۔ خدا نے جو محدود خود اختیاری انسان کو دی تھی، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑ دیتا، اور اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت اس نوع کے لیے اور اس کی مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے ہی وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدائی آفرینش سے اس نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود اختیاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا۔
चुनांचे अपनी इस खुद आयद करदा जिम्मेदारी को अदा करने के लिए उसने इंसानों ही में से ऐसे आदमियों को इस्तेमाल करना शुरू किया जो उस पर ईमान रखने वाले और उसकी रजा की पैरवी करने वाले थे। उसने उनको अपना नुमाइंदा बना दिया, अपने पैगामात उनके पास भेजे, उनको इल्म हकीकत बख्शा, उन्हें सही कानून हयात अता किया और उन्हें इस काम पर मामूर किया कि बनी आदम को उसी राह रास्त की तरफ पलटने की दावत दें जिससे वो हट गए थे। ये पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों में उठते रहे। हजार हा बरस तक उनकी आमद का सिलसिला चलता रहा। हजार हा की तादाद में वो मबऊस हुए। उन सब का एक ही दीन था, यानी वो सही रवैया जो अव्वल रोज ही इंसान को बता दिया गया था। वो सब एक ही हदायत के पैरो थे, यानी अखलाक व तमद्दुन के वो अजली और अबदी उसूल जो आगाज ही में इंसान के लिए तजवीज कर दिए गए थे। और इन सब का एक ही मिशन था, यानी ये कि इस दीन और इस हिदायत की तरफ अपने इब्नाए नौ को दावत दें। फिर जो लोग इस दावत को कबूल कर लें उनको मुनज़्ज़म करके एक ऐसी उम्मत बनाए जो खुद अल्लाह के कानून की पाबंद हो और दुनिया में कानून इलाही की अतात कायम करे और इस कानून की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए जिद्दोजहद करे। इन पैगंबरों ने अपने अपने दौर में अपने इस मिशन को पूरी खूबी के साथ अदा किया, मगर हमेशा यही होता रहा कि इंसानों की एक कसीर तादाद तो इनकी दावत कबूल करने पर आमादा ही ना हुई, और जिन्होंने इसे कबूल करके उम्मत मुस्लिमा की हैसियत इख्तियार की वो रफ्ता रफ्ता खुद बिगड़ते चले गए। हत्ता कि उनमें से बाज उम्मतें हिदायत इलाही को बिल्कुल ही गुम कर बैठी और बाज ने खुदा के इरशादात को अपनी तहरीफात और आमेजिशों से मस्ख कर दिया। आखिरकार खुदावंद आलम ने सरजमीन अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी काम के लिए मबऊस किया जिसके लिए पिछले अंबिया आते रहे थे। उनके मुखातिब आम इंसान भी थे और पिछले अंबिया के बिगड़े हुए पैरों भी। सबको सही रवैये की तरफ दावत देना, सबको असर नौ खुदा की हिदायत पहुंचा देना, और जो इस दावत और हिदायत को कबूल करें उन्हें एक ऐसी उम्मत बना देना कि उम्मत बना देना उनका काम था जो एक तरफ खुद अपनी जिंदगी का निजाम खुदा की हिदायत पर कायम करे और दूसरी तरफ दुनिया की इस्लाह के लिए जिद्दोजहद करे। नबूवत और अज़ली मीसाक, सूरह आराफ की 173वीं आयत। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा उशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बादिहिम अफ़त अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून। और ए नबी, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम कयामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ये ना कहने लगो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को उनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें इस कसूर में पकड़ते हैं जो गलत कार लोगों ने किया था? इस आयत में वो गर्ज बयान की गई है जिसके लिए अजल में पूरी नस्ल आदम से इकरार लिया गया था, और वो ये है कि इंसानों में से जो लोग अपने खुदा से बगावत करें वो अपने इस जुर्म की पूरी तरह जिम्मेदार करार पाएं। उन्हें अपनी सफाई में ना तो लाइल्मी का उज्र पेश करने का मौका मिले और ना वो साबिक नस्लों पर अपनी गुमराही की जिम्मेदारी डालकर खुद बरीउज़्ज़मा हो सके। गोया बाल्फाज दीगर अल्लाह ताला उस अजली अहद व मीसाक को इस बात पर दलील करार देता है कि नौ इंसानी में से
हम नौए इंसानी में से हर शख्स इनफरादी तौर पर अल्लाह के इलाह वाहिद और रब वाहिद होने की शहादत अपने अंदर लिए हुए है, और इस बिना पर यह कहना गलत है कि कोई शख्स कामिल बेखबरी के सबब से या एक गुमराह माहौल में परवरिश पाने के सबब से अपनी गुमराही की जिम्मेदारी से बिल्कुल बरी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अज़ली मीसाक फिल वाक़े अमल में आया भी था, तो क्या इसकी याद हमारे शऊर और हाफ़ज़े में महफूज है? क्या हम में से कोई शख्स भी ये जानता है कि आगाज़ आफ़रीनिश में वो अपने खुदा के सामने पेश किया गया था और उससे अलस्तु बिरब्बिकुम का सवाल हुआ था और उसने बला कहा था? अगर नहीं, तो फिर इस इकरार को, जिसकी याद हमारे शऊर और हाफ़ज़े से महव हो चुकी है, हमारे खिलाफ हुज्जत कैसे करार दिया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि अगर उस मीसाक का नक्श इंसान के शऊर और हाफजे में ताज़ा रहने दिया जाता, तो इंसान का दुनिया की मौजूदा इम्तिहान गाह में भेजा जाना सिरे से फजूल हो जाता, क्योंकि इसके बाद तो इस आजमाइश और इम्तिहान के कोई मायने ही बाकी ना रह जाते। लिहाजा इस नक्श को शऊर और हाफजे में तो ताज़ा नहीं रखा गया, लेकिन वो तहत शऊर यानी कि सबकॉन्शियस और विजदान यानी कि इंट्यूशन में यकीनन महफूज है। इसका हाल वही है जो हमारे तमाम दूसरे तहत शऊरी और वजदानी उलूम का है। तहजीब व तमद्दुन और अखलाक व मामलात के तमाम शोबों में इंसान से आज तक जो कुछ भी ज़हूर में आया है, वो सब दर हकीकत इंसान के अंदर बिलकुवा यानी कि पोटेंशली मौजूद था। खारिजी मुहर्रकात यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और दाखिली तहरीकात यानी कि इंटरनल मोटिव ने मिलजुल कर अगर कुछ किया है, तो सिर्फ इतना कि जो कुछ बिलकुआ था उसे बिलफेल कर दिया। ये एक हकीकत है कि कोई तालीम, कोई तरबियत, कोई माहौली तासीर और कोई दाखिली तहरीक इंसान के अंदर कोई चीज भी जो उसके अंदर बिलकुआ यानी कि पोटेंशियली मौजूद ना हो, हरगिज पैदा नहीं कर सकती। और इस तरह ये सब मुअस्सिरात अगर अपना तमाम जोर भी सर्फ कर दें, तो उनमें ये ताकत नहीं है कि उन चीज़ों में से जो इंसान के अंदर बिलकुआ यानी कि पोटेंशियली मौजूद है, किसी चीज़ को कतई महव कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ वो कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि उसे असल फितरत से मुनहरिफ यानी कि परवर्ट कर दें। लेकिन वो चीज तमाम तहरीफात और तमसीखात के बावजूद अंदर मौजूद रहेगी, ज़हूर में आने के लिए जोर लगाती रहेगी और खारजी अपील का जवाब देने के लिए मुस्तैद रहेगी। ये मामला जैसे कि हमने अभी बयान किया, हमारे तमाम तहतुल शऊरी और वजदानी उलूम के साथ आम है। वो सब हमारे अंदर बिलकुआ यानी कि पोटेंशियली मौजूद है, और इनके मौजूद होने का यकीनी सबूत इन चीजों से हमें मिलता है जो बिलफेल हमसे जाहिर होती हैं। इन सब के ज़हूर में आने के लिए खारजी तस्कीर, याद दहानी, तालीम यानी कि एजुकेशन, तरबियत और तश्कील यानी कि ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और जो कुछ हमसे ज़ाहिर होता है वो गोया दर हकीकत खारजी अपील का वो जवाब है जो हमारे अंदर की पोटेंशियली या बिलकुआ मौजूदात की तरफ से मिलता है। इन सब को अंदर की गलत ख्वाहिशात और बाहर की गलत तासीरात दबाकर, पर्दा डालकर, मुनहरिफ और मस्ख करके कलदम कर सकती हैं, मगर बिल्कुल मादूम नहीं कर सकती। और इसीलिए अंदरूनी एहसास और बैरूनी सही यानी कि अंदर का एहसास और बैरूनी कोशिश दोनों से इस्लाह और तब्दीली, कन्वर्जन मुमकिन हो सकती है। ठीक ठीक यही कैफियत इस वजदानी इल्म की भी है जो हमें कायनात में अपनी हकीकी हैसियत और खालिक कायनात के साथ अपने ताल्लुक के बारे में हासिल है। इसके मौजूद होने का सबूत ये है कि वो इंसानी जिंदगी के हर दौर में, जमीन के हर खित्ते में, हर बस्ती, हर पुश्त और हर नस्ल में उभरता रहा है, और कभी दुनिया की कोई ताकत इसे महव कर देने में कामयाब नहीं हो सकी है। इसके मुताबिक हकीकत होने का सबूत ये है कि जब कभी वो उभर कर बिलफेल हमारी जिंदगी में कार फरमा हुआ है, उसने सालेह और मुफीद नताइज ही पैदा किए हैं।
اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل یعنی کہ ایک ایکسٹرنل سٹیمولس کی ہمیشہ ضرورت یہی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیان حق سب کے سب یہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو قرآن میں مذکر یعنی کہ یاد دلانے والے، ذکر یعنی کہ یاد، تذکرہ یعنی کہ یادداشت، اور ان کے کام کو تذکیر یعنی کہ یاد دہانی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء اور کتابیں اور داعیان حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ جزاکم اللہ خیرا۔